اور ڈل کا انگریزی میں اگر مطلب نکالیں تو وہ بہت ہی خراب مطلب ہوتا ہے. تو بالکل یہ ڈل کا اگر نام ہے تو اپنے نام کے حساب سے برابر خراب چل رہا ہے اور اس برا حال ہے. اور اس برے حال میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس کے لیے ذمہ دار کون ہے. امپورٹنٹ پہلے ذمہ دار کون ہے, ریزن کیا ہے اس کی خرابی کی, یہ بہت امپورٹنٹ مدعے ہیں. اور اس کے بعد علاج کیا ہے. دیکھیے بیماری اگر ہو جاتی ہے تو اس کا علاج بھی ہوتا ہے, اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. ڈل جھیل کی ایک ہسٹری ہے اور ہسٹری کے ساتھ ساتھ یہ کشمیر کی تہذیب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دنیا میں اگر کہیں کشمیر کو ڈھونڈنا ہو تو پہلے ڈل کی بات کی جاتی ہے تو کشمیر آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ ڈل جیسی چیز دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. دو ہی چیزیں ہمیں وراثت ملی ہیں, وولر کا جو ایشیا میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈل. اب ڈل میں یہ ہو چکا ہے کہ اس کے لیے ہم نے سب کشمیری نے مل کے اس کو برباد کیا, اور پھر ہماری جو سرکاریں آئیں انہوں نے اس بربادی کے اوپر جو کچھ ان کا رول بنتا تھا اس کو اور زیادہ اسٹرانگ کیا. پہلی بربادی یہ ہے کہ یہاں اس ڈل جھیل کے اندر سب جو ماضی میں تھا ہم نے قدرت کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی. ڈل جو ہے یہ قدرت ہے, نیچر ہے, اس نیچر کے ساتھ ہم نے چھیڑ چھاڑ کی تو صاف ظاہر ہے جب ہم نیچر کو چھیڑیں گے تو نیچر ہمیں بدلے میں کچھ نہ کچھ دے گا ہی. تو اس نے ہماری یہ حال وولر کی کر دی, ڈل جھیل کی کر دی. مجھے یاد ہے, میں یوزلی کبھی کبھی موویز دیکھتا ہوں تو شمی کپور کی مجھے مووی کا گانا آج بھی یاد ہے, یہ چاند سا روشن چہرہ زلفوں کا رنگ سنہرا, وہ یہیں پہ فلمایا گیا ہے, یہ بالکل سامنے فلمایا گیا ہے. اور تب اگر اس سین کو آپ دیکھیں گے تو آس پاس ڈل کو دیکھیں گے تو بہت خوبصورت ہے. نہ یہ ویڈس ہیں, نہ یہ انکروچمنٹ ہے, نہ یہ درخت سفیدے کے درخت ہیں, چار چناری میں چار چنار ہیں, یہ سب کچھ اس میں نظر آ رہا ہے. یہ قریباً 30 سال پرانی کہانی ہے, لیکن 30 سال کے بعد جس جگہ پہ وہ فلمائی گئی ہے وہ مووی, اس پہ اگر جائیں تو ہمیں صرف ویڈس نظر آ رہے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہے. اب یہ ویڈس آئے کیوں, اس پہ بھی سوال ہے ہمارے. اس کے لیے سرکار کو چاہیے تھا کہ باضابطہ طور پہ کمیٹی ہونی چاہیے تھی. وہ کمیٹی دیکھتی, سائنٹسٹ کی کمیٹی ہوتی, وہ لوگوں سے مشورہ کرتی, لوگوں کی سجیشن لیتی, اس سب چیز کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو نہ اگنے کے لیے. بھیڑ تو آئیں گے لیکن اس کو روکنا ہے اس طریقے سے نہ آئے کہ یہ وبا بن جائے. لیکن سرکار نے یہاں پہ یوزلی ہم نے دیکھا کہ لاؤڈا میں جتنے بھی عہدیدار ان کو اپوائنٹ کیا گیا یا یہاں بھیجا گیا, ان کو بیسکلی کبھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لیک کیا ہوتی ہے, ان کو نالج ہی نہیں تھی واٹر باڈیز کی. تو کسی بھی افسر کو اٹھا کے یہاں لاؤڈا کا چیئرمین بنا دیا, اس نے آ کے اپنے 2 سال یہاں پہ نکالے, 2 سال کے بعد واپس چلا گیا. ڈل جھیل کا حال اس میں خرابی میں 10% ایڈی کر کے گیا, کوئی اس پہ اچھا کام اس کا نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ پھر سرکار نے سائنٹیفک طریقے استعمال کرنے کی کوشش کی. سرکار نے کوشش کی کہ ہم جو سائنٹیفک طریقے ہیں ان کو استعمال کریں, لیکن اس پہ بھی سرکار نے پہلے اپنا فائدہ دیکھا, بعد میں دیکھا کہ ان کو جس طرح کے سرکار نے, میں نے کہا کہ سرکار نے پہلے سائنٹیفک طریقے کا استعمال کرتے ہوئے, میں سرکار کی بات نہیں, چیف منسٹر یا گورنر یا کسی بات, میں کہتا ہوں پیپل ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرس, ہمارے بیوروکریٹ, سرکار وہی ہوتے, چیف منسٹر گورنر وغیرہ یہ سرکار نہیں ہوتے, سرکار ہوتی ہے بیوروکریٹ. ہمارے بیوروکریٹس نے اس چیز کو لاگو کرنے کے لیے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال میں لانے کے لیے پہلے سوچا کہ ہمیں کتنا فائدہ ہوگا, اس کے بعد انہوں نے ڈل کا سوچا اس ڈل کو کتنا فائدہ ہوگا. ایک مثال میں دوں گا, یہاں پہ جو اس کو کلیننگ کرنے کے لیے جو مشینیں ہیں جو ڈل جھیل کو صاف کرتی ہیں, 4 یا 5 مشینیں ہیں, ایک چل رہی ہے, اور باقی 4 کے بارے میں پوچھا, ایک کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ اس کی ایک بیرنگ خراب ہوئی ہے اور 3 سال سے وہ ٹینڈر پروسیس میں ہے, بیرنگ ابھی تک نہیں لائی گئی ہے. تو جس ڈل جھیل میں ایک بیرنگ وہ 5,000 کی ہو یا 15,000 کی ہو یا 50,000 کی ہو, اس کو لانے میں 3 سال لگیں گے, تو خود اندازہ کریے اس ڈل جھیل کو کتنا سیو کیا جا سکتا ہے. اور سیو کی جب بات آتی ہے تو ہم نے نعرہ دیا سیو, لیکن سیو نعرہ دینے کے لیے ہم نے صرف کس طرح سیو کرنا ہے یہ ہم نے کبھی نہیں بتایا. اور آج ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم سرکار کو مشورہ دیں. سب سے پہلے سرکار کہتی ہے کہ یہاں پہ جی انکروچ ہوا ہے, میں کہتا ہوں انکروچ نہیں ہوا. کون کہتا ہے انکروچ ہوا ہے؟ یہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, ان کے ساتھ ڈل ہے, ڈل ان کے ساتھ ہے, یہ دونوں یہ نیچر کا ایک حصہ ہے, یہ الگ سے نہیں ہے. یہ ڈل جھیل کی اتنی ہی رکھوالی کریں گے جتنی ڈل جھیل ان کا خیال رکھتی ہے, کیونکہ ڈل جھیل سے ان کو روزی ملتی ہے. جب ٹورسٹ آتا ہے تو پہلے ان کے پاس آتا ہے, ان کو ڈل جھیل کے اندر اور باہر ہر طرف سے روزی ملتی ہے, اور ان کو یہاں سے ہٹانے سے کوئی پالیسی, کوئی بڑا تو وہ ہم نے تیر نہیں مارا ہوگا, یہاں سرکاریں تیر نہیں ماری ہوں گی. ان کو ہاں ایک چیز ضرور کرنی ہے کہ ایک بیلنس رکھنا ہے کہ یہاں کتنے لوگ رہ سکتے ہیں اتنا ہی رکھنا ہے. اوور کراؤڈ لوگ یہاں پہ نہیں رہنے نہیں دینا ہے, ایک پراپر پاپولیشن کا ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے. اور پھر دیکھیے اس میں ہم نے نکالنے میں بھی, میں نے جس طرح بھی کہا کہ ہماری سرکاروں نے اس کو برباد کرنے میں اچھا رول کیا, سرکار میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, ہماری بیوروکریسی نے, یہاں سرکار نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے یہاں چند پورہ میں زمین لے لی,
इनको चंदपुरा में जमीन देने के बजाय वो ब्यूरोक्रेट्स को ने अपने खाते में दर्ज कर दी, इनको उठा के रखियारत, पामपुर, बिमना, बोट कॉलोनी में बसा दिया। जो जिन लोगों की रोजी रोटी डल के साथ जुड़ी हुई है, उन लोगों को इतना दूर डल के लेके रखा। अब वो डल में आएंगे, डल में जाएंगे, क्यों निकले यहाँ से? जब उनकी रोजी रोटी यहाँ पे, वो क्यों निकले यहाँ से? वो तो निकलेंगे नहीं। वो सरकार से पैसा लेंगे, दोबारा वापस आएंगे डल में। जैसे माजी में हुआ है, उन्होंने 2-2 फ्लैट लिए, 3-3 फ्लैट लिए, बिमना में लिए, हार्बर में लिए, दूसरी जगह लिए, उनको बेच दिया, वापस डल में आए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो रोजी रोटी से जब आप उनको दूर करोगे तो वो जाएंगे नहीं, किसी न किसी बहाने से आ जाएंगे। उसके बाद हमारा ये, जिस तरह मैंने पहले सरकार का कहा, आम कश्मीरी का भी कहूँगा, डल झील के एक ऐसी जगह है कश्मीरी के लिए, टूरिस्ट के लिए नहीं, कश्मीरी के लिए। हालात हमारे बहुत ख़राब हैं, इंटरटेनमेंट के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, हालात हमें इजाज़त नहीं दे। टाइम तो है कश्मीरी के पास, सब कुछ, अगर कुछ भी नहीं है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा है उसके पास, लेकिन हालात इजाज़त नहीं देते हैं इंटरटेनमेंट के लिए। फिर अगर कभी कोई रिलैक्स मूड में होना चाहता है तो वो डल झील के किनारे आके बैठना चाहता है, डल झील में आके सैर करना चाहता है, कश्मीरी खुद भी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ जब वो आता है तो यहाँ वो इसको और ज़्यादा पोल्यूट करता है। वो ख्याल ही नहीं रखता है कि मैं इस वाटर बॉडी में गया हूँ तो इसका क्या हाल करूँगा। और मुझे लगता है जिस तरह से मैं सिचुएशन अंदर की देखे, कारपोरा से लेके बाहर तक जितनी सिचुएशन देखी है, कि ये भी एक हिस्ट्री बनेगी बहुत जल्द। यहाँ पे एक दलदल होगा, और जिस तरह आपको याद होगा, यहाँ खुशहाल सर था, यहाँ पे दूसरे जो 2-4 सर थे, खानियार के पास एक झील हुआ करती थी, इधर नगीन के उस पर वो झील हुआ करती थी। उसी तरह एक और झील भी ये हो जाएगी, एक जिस तरह उनका नाम है, इस तरह 2-4 सालों में इसका भी नाम हो जाएगा। जैसे कि ये फंक्शन KNT ने ऑर्गेनाइज किया है नियाज जलाई की सदारत में, तो मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ना लेके आपका मैं थोड़ा सा इस डल के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर डल की बात हम ये करें कि डल बिल्कुल बेहुदा हो गया है। इसकी ऐसी पोजीशन होगी जैसे अगर हम देखा जाए कि वो जो मार्शल लैंड है वहाँ पे इस किस्म की पोजीशन है इनकी। अगर हम ऐसा कर लें कि ये देखा जाए कि यहाँ के जो हाउस बोट ओनर्स है, अगर वो थोड़ा इसकी तरफ तवज्जो दे दें तो इनका जो टैक्स वगैरह है जो डल में जाता है, इसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ जाता है और दूसरा ये वेडिंग की ग्रोथ हो जाती है। इसको रोकना बहुत हद तक ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो कैचमेंट एरियाज वगैरह जो है उनकी वजह से भी जो इनको डिस्ट्रॉय किया गया है। जैसे अगर हम गोल्फ कोर्स की बात करें तो उसकी वजह से भी ये साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर इसको डिस्ट्रॉय करोगे आप 3 साल में फिर ये रिवाइव हो सकता है, साइंटिस्टों का मानना है। और दूसरी ये इसकी डल में जो सड़कें बनाई गई है, डल में जो एनक्रोचमेंट हो गया उसकी वजह से डल जो है ये बिल्कुल श्रिंक हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हर हालत में इस डल को बचाना चाहिए और इसका जो इसकी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इसकी तरफ बहुत हद तक तवज्जो देनी चाहिए कि जहाँ ये बिल्कुल ये कश्मीर का एक बहुत ऐसा नमूना है जो दुनिया भर में मशहूर है। तो इस डल को हमको हर हालत में हर फर्द का ये काम बनता है कि इसको इसकी तहफ़्फ़ुज़ इसकी करे। बस जैसे एक शायर ने कहा है, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो ये बहुत ही संजीदा मसला है, इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और गौर व फिक्र से ज़्यादा इस पर अमल बरामद होने की ज़रूरत है। लेट्स नॉट शेयर द ब्लेम गेम कि ये किसकी गलती रही है, किसने क्या किया है। आज तक जो भी चीज़ें हुई है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से हुई है, यहाँ के लोगों से हुई हैं, जो डल में रहते हैं उनसे हुई है, जो पेरिफेरीज में रहते हैं उनसे हुई है। सो लेट्स नॉट शेयर द ब्लेम गेम, लेट्स डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव विच शुड बी मोर फ्रूटफुल एंड मोर प्रोडक्टिव इन द नेचर, जिसकी वजह से हम अपने इस कौमी असासे को बचा सकें। हम अपने बच्चों को जो मीरास हमें हमारे फोर फादर से, हमारे वालिदैन से, हमारे बुज़ुर्गों से मिली है, उस मीरास को आगे बढ़ा के हम अपने आने वाली पुश्तों तक ले चलें। उसके लिए हमें इक़दाम उठाने चाहिए, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। और जैसे कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट की एक लाइन, मैंने अभी एक शेर पढ़ा उनके एक बैनर पे, तो बहुत ही खूबसूरत शेर उन्होंने अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा का कोट किया है कि बरहम हो बिजलियाँ कि हवाएं खिलाफ हो, कुछ भी हो एहतिमाम में गुलिस्तां करेंगे हम। सो इफ समथिंग हैज़ टू बी डन, इट शुड बी concrete and it should be practical and it must be done. It must be done and it must be. I would not like to target the government or any department. I simply want to see over here that whosoever is sitting over here, he is completely and absolute an institution. Rather taking and targeting them, we are quite aware about the fact that they have been take their time. Let them do their job. But I want to see over here, let's make this event intellectually and practically very high. Otherwise, again, we are trying to cut and jab the tree until to make it very high. I simply want to say
that the present generation and the media, which is आप कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। which is let me just go. आप बोलिए। The media, which is a complete and undisputed threat and revolution in every country, in every nation. If the media is going to take a pledge, then the things are going to be automatically possible. The day is not so far. Again, you will see the prosperity and the laurels again in the Dal Lake. The people, as we are quite aware, the things are going to be okay once again. They're awesome for the Dal Lake. But the things are still pending. And this is a very serious concern where we have to take. I don't want to just target anyone over here. I simply believe that let's be practical. We have to make people aware the spiritual importance of the Dal and the economic importance of it. Because today the world is leading towards the economy, and we have to make the locals and whosoever called so-called people. I don't want to see so-called people in the business. I really want to see the intellectual who claim that we are, I must say, the Karta Dharta. Sorry to say I'm using the word Urdu, Karta Dharta, for this nation and for this state and for this valley, where they are. Let's not just target the government and again now. They have to do their job now. Let them do. But where we are, right now, just I'm talking to you, among the intellectuals and the people who are at complete institutions in every aspect, where are they? Are we supposed to just only the events? Are we only supposed to just say a final words? The moment I enter over there, I saw the two masons. They were cementing the bund of the land over there, the bend of the Dal Lake now. And I moved back myself. I said, look at it, I think. Today, let's not make this event just like that just come and fulfill the gaps. We are not supposed to fulfill the gaps now. We have to really make this gap possible in every aspect. And that would be the final now. And tell the world that we are the people, that we know that how we can take care of our property. This is our property. It's not a property of America and Canada. It's a property of ours. So we have to take initiative, and then things are going to be awesome. Thank you very much. सबसे पहले मैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट की मैनेजमेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज के इस पुरशोभ दौर में जबकि हर इंसान अपनी जेब भरने या अपने पेट के सामान करने में कोशा रहता है, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और डल के बचाव और डल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से यहाँ पर एक खूबसूरत से प्रोग्राम का इनेकाद किया। आप मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। डल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने इससे पहले भी कहा, मैंने कहा दो एजेंसीज़ हैं जिनकी ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। एक गवर्नमेंट है जो अपनी ज़िम्मेदारी आज तक निभाने में मुकम्मल तौर नाकाम हुए हैं। उन्होंने डल के तहफ़्फ़ुज़ पर करोड़ों और अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन डल की हालत जो इस वक्त हम देख रहे हैं वो बता रही है कि डल पर उस पैसे में से कितना हिस्सा खर्च किया गया है और इन लोगों की अपनी जेबों में कितना पैसा गया है, नंबर एक। नंबर दो, जो डल के अंदर रहने वाले लोग हैं, जैसा कि मुझसे पहले भी जो स्पीकर्स थे उन्होंने कहा कि आप उन लोगों को डल से जुदा नहीं कर सकते। डल उनसे है और वो डल से। डल उनके रोजगार के सामान फराहम करता है और वो सदियों से इस डल को इसी रोजगार के बहाने साफ करते रहे हैं। अगर आप उन्हें यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है, आप निकाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वो यहाँ से निकल जाएं, तो फिर डल की सफाई आपकी जिम्मेदारी है जो कि आप निभा नहीं पा रहे हैं। डल इस वक्त जो मंजर पेश कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि आइंदा 2-5 साल में डल सिसकते सिसकते मर जाएगा। तो जिम्मेदारी दोनों की है। मेरे ख्याल से लाउडा में एडिशनल चार्जेस देने का जो रिवाज है, आप वीसी को एडिशनल चार्ज देते हैं और मुझे लगता है इस पर मातम करने की जरूरत है। ये मातम करने लायक बात है कि आप डल जैसे हसास मसले पर, डल जैसी हसास वाटर बॉडी पर एक एडिशनल चार्ज वाला ऑफिसर ला करके बिठा देते हैं। और उससे बढ़कर सितमजरी की बात यह है कि आप ऐसे लोगों को ला करके ज़माम इख्तिदार उनके हाथ में देते हैं जिन्हें वाटर बॉडीज के मैनेजमेंट का
थोड़ा बहुत भी इल्म नहीं है। आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को वहां से उठा करके यहाँ लेके आते हैं, उसे साइंस पता नहीं है, उसे इकोलॉजी का कोई इल्म नहीं है, और नतीजा ये होता है कि वो ढल की हैयत और इसकी माहियत को बिगाड़ देता है, बजाय इसके कि उसमें कोई सुधार लाया जाए। तो मेरा एक मशवरा होगा, यहाँ पर हमारे डल डेवलपर्स में से एक साहिब बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं एक एनजीओ भी चला रहा हूँ। चले, आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक सिटीजन्स काउंसिल तश्कील देना चाहिए, जो डल से रिलेटेड मुख्तलिफ मामलात जो हैं वक्तन फवक्तन जो इख्तिदार पे बैठे हुए हमारे लोग हैं उन तक पहुंचाएं। डल के हवाले से जितने भी मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू करें, उन पे बात करें, उन्हें मीडिया की जीनत बनाए और फिर जाकर के उन्हें ज़माम इख्तिदार संभाले लोगों के सामने रखें, ताकि इस डल के तहफ़्फ़ुज़, इसके बचाव के हवाले से इक़दाम किए जाएं, बजाय इसके कि आप करोड़ों रुपए अरबों रुपए इस पे खर्च करें और उसका कोई फ़ायदा ना हो। थैंक यू। देखिए, ये डल खाली वाटर बॉडी नहीं है, ये कंप्लीट एक पैकेज है, इकोलॉजी है। यहाँ पे जिस तरह पानी ज़रूरी है, उसी तरह यहाँ की जो वेजिटेशन है वो ज़रूरी है, और साथ साथ में उसी तरह यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी यहाँ रहने की होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक ये देखा गया है कि यहाँ के लोकल लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं है डल को पोल्यूट करने के लिए। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं है तो वो आप फोर फ्रंट देख लीजिए इसका, और इसका बैक साइड देख लीजिए। यहाँ पे कुछ टाइम पहले फ्लोटिंग गार्डन्स हुआ करते थे जो डल को साफ करने का काम करता था, लेकिन मुझे सुनने में आया है कि वो गवर्नमेंट ने डिमोलिश किया है, डिस्ट्रॉय किया है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है डल को। अस्सलामुअलैकुम। पहले तो मैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये सेमिनार यहाँ पे कंडक्ट किया। तो यहाँ पे मैं अभी इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार जो है बुलंद दावे करते आ रही है कि हम सब कुछ कर रहे हैं डल को बचाने के लिए, लेकिन हमारे सामने जो पिक्चर है वो हमारे सामने है, कितने वीड्स यहाँ पे है, डल जो है बहुत ही बुरी हालत में है। तो यहाँ पे जिम्मेवारी मैं बोलूँगा कि सरकार की भी बनती है और जो आसपास लोग रहते हैं उनकी भी बनती है। सरकार की इतनी जिम्मेवारी बनती है कि जो यहाँ पे ये वीड्स है या कोई गंदगी है उसको साफ करे। वो उन्होंने बहुत सारी मशीन्स लाई, लेकिन जो हम न्यूज़ भी करते आ रहे हैं, जो सुनते भी आ रहे हैं कि वो मशीन्स जो हैं डिफंक्ट हैं, और उस जो मशीन्स खरीदी गई उनमें ज़्यादातर जो पैसा है वो मुलाजमों ने अपने पास ही रखा। और जो यहाँ के लोग हैं मैं उन पे जोर देना चाहूँगा कि जो भी गंदगी है उसको वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करे, डल में ना डाले। जो डल है एक कौमी असासा है, तो इसको बचाने के लिए हर किसी को सामने आना चाहिए। ज़्यादातर जिम्मेवारी जो है सरकार की बनती है, सरकार को कुछ ठोस इकदाम उठाने की ज़रूरत है, तभी जो है डल लेक बच सकता है। ये हमारा कौमी असासा है। जो भी टूरिज्म, मेन टूरिज्म अट्रैक्शन सिटी में डल लेक है, अगर अभी हम नहीं कुछ कर पाए तो फिर हम कभी नहीं कुछ कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बाकी लेक्स का क्या हाल हुआ, वही हाल इस लेक का भी होगा। लोग हैं डल डेवलपर्स, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और डल की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या मसाइल हैं। लेकिन मैं एक अहम मुद्दे पे बात करूंगा जो आज कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट ने यहाँ पर थीम भी रखा था, वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया इन सेविंग द डल लेक। सबसे अहम भूमिका जो है वो मीडिया की बनती है कि मीडिया जो है अवेयरनेस क्रिएट करें, प्रॉब्लम्स के रिलेटेड सॉल्यूशंस दें, और ख़ासतौर पर कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं उनको लेकर बात करें, ताकि जो है आला हुकाम तक ये बात पहुँचे और समाज में जागरूकता आ जाए। जब तक मीडिया अपना रोल, अपनी भूमिका अच्छी तरह जो है नहीं साबित करता या मुकम्मल तौर पर अपना काम नहीं करता, तब तक जो खास तौर पर जो समाजी मसाइल होते हैं, चाहे आप डल लेक की इस बदहाली की बात करें या जो बाकी सोसाइटी में मसाइल है उनकी बात करें, वो तब तक आम समाज के जहनों में नहीं आती। और इसलिए मीडिया का पे ये फर्ज बनता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है खासतौर पर यहाँ का जो रीजनल मेन स्ट्रीम मीडिया है कि वो लगातार डल लेक, टूरिज्म के हवाले से और पोल्यूशन के हवाले से, एनवायरनमेंट रिलेटेड इशूज के हवाले से बात करें, एक्सपर्ट्स तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, और जो ग्रास रूट लेवल पर जो लोग जुड़े हैं उन तक पहुँचे, और उसके बाद वो
عوام کے سامنے باتیں رکھیں. جس طرح آج ہم یہاں پر جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد ہم نے یہاں الگ الگ لوگوں سے بات کی, اور ایز اے جرنلسٹ جو چیزیں مجھے بھی پتہ نہیں تھی وہ چیزیں مجھے پتہ چلی, اور اس کے بعد میری نالج میں اضافہ ہوا, اور کہیں نہ کہیں یہ بھی پتہ چلا کہ کہاں پر لوپ ہول ہے اور کہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا کا اہم رول ہے. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس رِشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت.